ভাল খবৰ আৰু এই ভাল খবৰ লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলক ঘৰ সাজি দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকক মোদী চৰকাৰে সাজি দিব ঘৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ অৰ্থাৎ মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ বাবে সুখবৰ লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকক ঘৰ দিবলৈ মোদী চৰকাৰে মুকলি কৰিব নতুন আঁচনি অনাগত বৰ্ষত মুকলি কৰা হ'ব এই আঁচনি আৰু স্বাধীনতা দিৱসত পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতেই দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু তাৰ পাছত এই ভাষণৰ প্ৰসংগতেই এই কথা উল্লেখ কৰা হ'ল ভাষণৰ মাজত এই কথা উল্লেখ কৰা হ'ল অৰ্থাৎ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষণত স্থান পালে এই বিষয়টোৱে চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকক মোদী চৰকাৰে সাজি দিব ঘৰ চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলৰ বাবে সুখবৰ লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আহিছে এটা ভাল খবৰ চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকক ঘৰ দিবলৈ মোদী চৰকাৰে মুকলি কৰিব নতুন আঁচনি অনাগত বৰ্ষত মুকলি কৰা হ'ব এই আঁচনি চহৰত ভাড়া ঘৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলে লাভ কৰিব নিগাজিকৈ এটা ঘৰ আপুনি যদি চহৰৰ ভাড়া ঘৰত আছে তেনেহলে আপোনাৰ বাবে আজি স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আহিছে এটা ভাল খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আপোনাক ঘৰ দিব মধ্যম বৰ্গৰ লোকৰ চহৰত নিজৰ ঘৰত থকাৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিব মোদী চৰকাৰে চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকক মোদী চৰকাৰে সাজি দিব ঘৰ আপুনি যদি এটা ঘৰৰ সপোন দেখি আছে আপুনি যদি চহৰত ভাড়া ঘৰত আছে তেনেহলে এতিয়া আৰু চিন্তা নাই আপুনি চহৰতে এটা ঘৰ পাব আৰু এই ঘৰটো লোৱাত আপোনাক সহায় কৰিব অৰ্থাৎ ঘৰটো আপোনাক দিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অনাগত বৰ্ষত মুকলি কৰা হ'ব এই আঁচনি চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকললৈ ভাল খবৰ লৈ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চহৰত থকা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লৈ আহিছে এখন বিশেষ আঁচনি চহৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব ঘৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই এটা ভাল খবৰ আহিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চহৰত থকা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলক ঘৰ দিব যি এতিয়াও ভাড়া ঘৰত আছে যি এতিয়াও এটা ঘৰৰ সপোন দেখি আছে যি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীত পৰে সেই লোকজনৰ বাৰু এতিয়া চিন্তা নাই তেনে ব্যক্তিয়ে এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘৰ দিব চহৰত ভাড়া ঘৰত থকা মধ্যম বৰ্গৰ লোকসকলে লাভ কৰিব নিগাজিকৈ এটি ঘৰ ভাৰতবাসীক আজি সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাষণত স্থান পালে এই বিষয়টোৱে পুনৰ কৈছো আপুনি যদি চহৰত আছে আপুনি যদি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত আপুনি যদি ভাড়া ঘৰত আছে আপোনাৰ যদি এটা নিগাজিকৈ ঘৰ নাই তেনেহলে এতিয়া আৰু চিন্তা নাই আপোনাক চৰকাৰে ঘৰ দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আপোনাক ঘৰ দিব এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনাই আহিছে এই বিশেষ খবৰটো বেংকৰ পৰা বিনা সুদত লোন লৈ চহৰত নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিব ঘৰ বেংকৰ পৰা বিনা সুদত ঋণ লৈ আপুনি ঘৰ বনাব পাৰিব বেংকৰ পৰা কোনো সুদ নোহোৱাকৈ আপুনি ঋণ পাব আৰু সেই ঋণেৰে আপুনি আপোনাৰ সপোনৰ ঘৰখন সাজি ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লৈ আহিছে এই বিশেষ খবৰটো অনাগত দিনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিব এখন বিশেষ আঁচনি আপুনি যদি এটা ঘৰৰ সপোন দেখি আছে চহৰত এটা নিজা ঘৰৰ সপোন দেখি আছে আপোনাৰ সেই সপোন এতিয়া বাস্তৱত পৰিণত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লৈ আহিছে এখন বিশেষ আঁচনি চহৰৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ যিসকল লোক ভাড়া ঘৰত আছে সেই লোকসকলে ঘৰ লাভ কৰিব আৰু বেংকৰ পৰা
বিনা সুদত লাভ কৰিব ঋণ। गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थ चक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही है तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी उस पर काम हो रहा है तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं।
आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की जरूरत से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है, उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति, बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखा। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था, 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी